Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we discussed about North Pole, South Pole, latitudes, equator, parallels of latitudes, etc. Okay, so children, let us recapitulate something about latitudes. So, children, as you already know, half of the earth is known as equator and it is the greatest circle. So let us recapitulate some facts about lines of latitude. These are known as parallel bache, as you already know. All these lines are parallel and they never meet. Okay, so children, these latitudes run only in east-west direction, as you can see, only east-west direction. Okay, and distance can be measured in northern hemisphere and also in southern hemisphere from equator. Okay, इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं एंड इक्वेटर से ही हम southern hemisphere में भी difference. They are parallel to each other and never meet बच्चे and they cross prime meridian at right angles. For example, this is prime meridian, Greenwich meridian और हमेशा ही ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है बच्चे पैरेलल के साथ. एंड दीज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बच्चे जो सर्कल्स होते हैं ये शॉर्टर होते जाते हैं सर्कल्स टुवर्ड्स द पोल्स विद ओनली इक्वेटर द लॉन्गेस्ट अ ग्रेट सर्कल. सबसे बड़ा आपका इक्वेटर ही है जो ग्रेटेस्ट सर्कल होता है. एंड चिल्ड्रन, वन मोर थिंग अबाउट लैटिट्यूड्स. Each degree of latitude is approximately 111 किलोमीटर अपार्ट. जो बच्चे हर एक डिग्री के बीच में डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स में कितना होता है 111 किलोमीटर्स. हर एक डिग्री में 111 किलोमीटर्स का डिफरेंस रहता है. Got it? So that is all about recapitulation of latitudes. So children, let us discuss about heat zones. So, which is some parts of the earth receive more heat than other parts because of the variation in the angle of the rays of the sun. Depending on the heat received, the zones are named differently. These are Torrid Zone, Temperate Zone and Frigid Zone. Let us discuss them one by one. So, there comes Torrid Zone. So, children, the Torrid Zone, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn marks the limits of this zone. So this area is known as Torrid Zone. Okay, and in this zone, the rays of the sun are exactly overhead once a year, except on the equator, where the midday sun is overhead twice a year. In this zone, बच्चे, the rays of the sun are exactly overhead. जो rays होती हैं sun की वो exactly सर के ऊपर होती हैं, overhead होती हैं once a year. एक्सेप्ट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़ के, क्योंकि इक्वेटर में जो मिड डे सन होता है वो 2 बार आता है साल में. ओके, हेंस इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ वेरी हॉट. ये वाला एरिया बेटे मैक्सिमम हीट रिसीव करता है सन से और बहुत ही ज़्यादा गर्म है. ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन वहाँ पे सन रहता है ओवरहेड. इट मीन्स बच्चे की अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, फिर भी ये जो सारा एरिया है एक बार इस पूरे एरिया के ऊपर एक बार तो सन ओवरहेड रहता ही रहता है. ओके, एंड इक्वेटर पे तो ट्वाइस भी आ जाता है, 2 बार भी आ जाता है. ओके, और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हीट जोन बिकॉज दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट. ओके, देन बच्चे there comes the temperate zone. The zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle is called North Temperate Zone. The zone between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is called the South Temperate Zone. Okay, look at here, such as this is the area between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in Northern Hemisphere, and this is the area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Okay, in southern hemisphere. So these two zones are temperate zones. Okay, in both hemispheres. Okay children, the sun rays in both these zones are never directly overhead. मतलब इस एरिया में कभी भी बेटे सन रेज ओवरहेड नहीं होती हैं. ओके, हमेशा स्लैंटिंग रेज ही मिलती हैं. ओके, द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेज एज वी गो टुवर्ड्स द पोल. जैसे ही पोल्स की तरफ जाते रहते हैं बच्चे, रेज जो होती हैं सन की उनका एंगल जो है डिक्रीज होता रहता है, कम होती रहती हैं वो. और स्लैंटिंग, बोथ दीज एरियाज गेट बच्चे स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. ओके, दैट्स वे दीज जोन्स आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड.
दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर। ना तो ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ना ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे एक मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है। ओके अगेन बच्चे लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट जोन्स। ओके सो बच्चे दिस रेड एरिया मार्क्स द टॉरिड जोन एज वेल एज हीट जोन, वेयर एज दिस येलो कलर मार्क्स temperate zone. Okay and it is not too cold and too hot. Okay then there comes बच्चे the frigid zone. Okay frigid means जो जमी होती है. It lies from Arctic Circle to the North Pole and from Antarctic Circle to the South Pole. This zone remains covered with ice and snow for the most part of the year because the rays of the sun are always slanting, hence it is the coldest zone of the earth. So बच्चे कहाँ लाई करती है ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक. दिस इज नॉर्थ पोल, तो दिस इज फ्रिजिड जोन. ओके एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ लाई करती है ये, फ्रॉम एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल. ओके सो दिस इज फ्रिजिड जोन इन सदर्न हेमिस्फीयर. गॉट इट. तो ये हमेशा ही आइस और स्नो से कवर्ड रहती हैं बेटे दोनों जोन्स फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग है. ठीक है तो ये सबसे कोल्डेस्ट जोन है अर्थ की. दिस इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. सो चिल्ड्रन हियर द ब्लू शेडेड एरिया इज द फ्रिजिड जोन इन बोथ हेमिस्फीयर्स. ओके देन चिल्ड्रन देयर कम्स बच्चे लॉन्गिट्यूड्स. Our next topic is longitudes. As children we have read about latitudes. Now let us discuss about longitudes. Okay so children the meridians of longitude are a set of imaginary vertical lines. बच्चे अब ये क्या है longitudes, as I have told you earlier, अब ये आपकी vertical lines है. जो आपके latitudes थे वो क्या थे, आपके horizontal lines थे. अब ये क्या है बच्चे, आपकी vertical lines है longitudes जो है. ओके और इन्हें मेरिडियंस भी कहते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस. बच्चे दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स विच कन्वर्ज टूवर्ड्स द टू पोल्स एंड आर द वाइडेस्ट at the equator. Unlike the parallels of latitude, they all are equal in its length. So children, these longitudes are in the form of semicircles, okay, which converge towards the two poles, जो two poles की दूसरी तरफ converge कर जाते हैं. Okay, and are the widest at the equator. And equator में ये बहुत ज़्यादा wide है. Okay, unlike the parallels of latitude, मतलब parallels of latitude की तरह ये अनइक्वल नहीं है. दीज आर ऑल इक्वल इन लेंथ. इन सब की लेंथ जो है वो इक्वल है. ओके जबकि जो हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था बच्चे, वो जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है इक्वेटर का बनता है, फिर उसके बाद तो जो है सारे सर्कल्स श्रिंक होने लगते हैं. ठीक है तो सबसे बड़ा जो है 0 डिग्री पे ही बनता है इक्वेटर पे. ओके सो चिल्ड्रन लॉन्गिट्यूड्स को आपने याद कैसे रखना है बच्चे. सो लॉन्ग लाइन्स जो लंबी हैं, खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग लाइन्स. ओके वेयर एज बच्चे लैटिट्यूड्स को याद रखने का कौन सा वे था हमारा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेटी हुई हैं. लैटिट्यूड मींस लेटी हुई लाइंस. ओके सो चिल्ड्रन हियर यू कैन सी द डिफरेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑल अराउंड द ग्लोब एट एन इंटरवल ऑफ एन एंगल ऑफ 1 डिग्री. बच्चे तो ये यहाँ पे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं. सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस यहाँ पे पूरे सारे मेरिडियंस नहीं दिखाए जा सकते. सो बच्चे डायरेक्टली 10 डिग्री को ही दिखाया गया है. ओके बच्चे एज ऑल दीज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, ये सारी की सारी लाइंस इक्वल हैं तो हम किसी को कोई भी नंबर दे सकते थे 1 2 3 4. बट बच्चे द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंडन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. बिकॉज बच्चे ये सेंटर में पड़ता है, दैट्स वाई इस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री मान लिया गया है. ओके एंड दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन मीन्स कि मोस्टली इसी 0 डिग्री मेरिडियन को बेस मानकर चलते हैं जब भी कोई सम आपको सॉल्व करना हो टाइम के रिगार्डिंग. ओके या किसी भी कंट्री का जब आपको टाइम निकालना हो. गॉट इट. सो बच्चे ये 0 डिग्री मेरिडियन आपका half of the earth शो करता है from east to west. So children there are 180 degree longitudes each drawn on both side of the prime meridian. Okay 180 मेरिडियन है एक साइड पे बच्चे और ये दूसरी तरफ कन्वर्ज कर जाते हैं, तो वन साइड पे 180 है और दूसरी तरफ आपके अगेन 180 हैं, तो पूरे कितने बन जाते हैं 360 longitudes. Okay so the value of the meridians of longitude starts from 1 degree to 180 degree towards the east
एज वेल एज टूवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सो बच्चे 180 आपके यहाँ पे है ईस्ट की तरफ और 180 आपके वेस्ट की तरफ है प्राइम मेरिडियन के। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो बच्चे आपको ये 0 मेरिडियन से ईस्ट वाला पार्ट दिखाई देता है, दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड 0 डिग्री से बच्चे वेस्ट की तरफ जो भी पार्ट है दैट इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स। हर एक हेमिस्फीयर में, दोनों ही हेमिस्फीयर में बच्चे 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज दस 360। सो टोटल कितने हो गए बच्चे? 360। सो टोटल देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। एंड सो बच्चे जो मेरिडियंस ईस्ट की तरफ हैं उनके एड्रेस के लिए ई लगाया जाता है, जो भी मेरिडियंस ईस्ट की तरफ हैं तो उनके साथ ई ज़रूर लगेगा। दैट्स वाई ये क्लियर हो जाए कि ये मेरिडियन कौन से हेमिस्फेयर का है। ओके, एंड जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ आपके मेरिडियंस हैं उनके साथ डब्ल्यू लगता है। जैसे कि बच्चे लैटिट्यूड्स में नदरन हेमिस्फेयर के प्लेसेस के साथ एन लगता है एंड सदरन हेमिस्फेयर के प्लेसेस के साथ एस लगता है। ओके, जो 180 डिग्री मेरिडियन है बच्चे, ये कॉमन लाइन है और ये इंटरनेशनल डेट लाइन इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन से क्रॉस करती है। गॉट इट? And this international date line is very important. It is taken as base in calculating the standard time of a country. Okay, so international date line is very important. Okay, so children, as I have told you about the 0 degree meridian, so this is the 0 degree meridian which divides the earth into two hemispheres, eastern as well as western hemisphere. This is eastern hemisphere, and beside 0 degree west, this is western hemisphere. Okay, so but same like that, longitude, equator passes through different countries of the world. So you can see here the equator line. Okay, this is the peak of Ecuador. Okay, and beyond this line there is northern hemisphere, and here there is southern hemisphere, and this is equator, as you can see. Okay, so like 0 degree meridian, equator is also marked in different countries and the places are decorated very well. लोग इक्वेटर पे खड़े होकर अपने आप को इक्वेटर पे फील करते हैं और अगेन इसके चारों तरफ आप ये पैरेलल्स देख सकते हैं। It is same like that equator also passes through Uganda, as you can see here, this is the equator line. Okay, so बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है कुछ कंट्रीज़ ने जहाँ से इक्वेटर पास करता है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। So children, as you can see how time is calculated from international date line. As you can see the peak from north pole, ये बेटे नॉर्थ पोल है और ये सारा आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल से आपको डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स क्लियर किए गए हैं, जैसे कि अर्थ के एक पार्ट की तरफ 0 डिग्री है तो उसी के ही ऑपोजिट आपका 180 डिग्री है। ओके, एंड दिस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड इसी डेट लाइन के ईस्ट में बच्चे जो है कंट्रीज़, वहाँ के टाइम को प्लस कर दिया जाता है और जो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड पे हैं वहाँ पे टाइम को लेस कर दिया जाता है। ओके, एंड इन दिस वे टाइम इज़ कैलकुलेटेड। और टाइम का बेस क्या लिया जाता है? जो टाइम 0 डिग्री मेरिडियन पे होता है उसी टाइम को बेस लिया जाता है और उसी बेस टाइम में आपका प्लस और माइनस कर दिया जाता है बोथ हेमिस्फीयर को देखते हुए। गॉट इट? देन चिल्ड्रन, देयर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड क्या होता है बच्चे? ग्रिड मीन्स एक जाल सा। ओके, सो अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ ग्रिड। जब बच्चे ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो ये ग्रिड बन जाता है, अपने आप से एक जाल बन जाता है। ओके, एंड दिस सिस्टम इज़ नोन एज ग्रिड सिस्टम। एंड इस ग्रिड में बच्चे ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो जो भी प्लेस होता है ना बेटे वर्ल्ड में, वो उसका जब एड्रेस बताया जाता है सो बच्चे वो प्लेस ग्रिड के थ्रू ही दिखाया जाता है। ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसी इंटरसेक्शन के थ्रू किसी भी प्लेस को ग्लोब पे शो किया जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ लाइंस, इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के इंटरसेक्शन के कारण जो ग्रिड सिस्टम बनता है बच्चे, इसी से ही पॉसिबल है कि लोकेशन किसी प्लेस की डिटरमिन की जा सकती है। ओके, सो बच्चे किसी भी प्लेस का अगर आपने एड्रेस जानना हो तो उसके साथ उसका लैटिट्यूड, मान लो इस लैटिट्यूड जो हमने केरला का एग्जांपल किया था बच्चे कि वो 8 डिग्री लैटिट्यूड पे है लेकिन उसका लॉन्गिट्यूड डिफरेंट हो सकता है। सो ये उसका एड्रेस बनेगा लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड, दोनों ही बताने पड़ते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल नासिक इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो जो नासिक है ना बच्चे महाराष्ट्र में, वो कहाँ लाए करता है 20 डिग्री नॉर्थ में। तो यहाँ 0 डिग्री है, तो बच्चे यहाँ पे आपका कहाँ पे होना चाहिए 20 डिग्री वाला ये लैटिट्यूड मान के चलते हैं आप, ओके। लेकिन अब 74 ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी है, तो 74 यहाँ पे जब 0 लॉन्गिट्यूड है तो 74 कहाँ पे हो सकता है बच्चे, तो हेयर यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है, ईस्ट में। तो यहाँ पे आपका लाए करता है नासिक, जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एंड दैट प्लेस मार्क्स नासिक। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी इट मीन्स आप जिस प्लेस को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, जिसकी लोकेशन को ट्रेस करना चाह रहे हैं, उसी इंटरसेक्शन पे वो प्लेस मिलेगा, ओके। सो this is about grid system. So बच्चे this is the grid of parallels and meridians. Meridians means longitudes, okay, and इसी grid की help से बच्चे किसी भी place की location को trace किया जा सकता है और determine किया जा सकता है. Got it? So children, that's all in today's topic. Revise your topic.